मुकाबला करना है। अब उसका मुकाबला हम ये नहीं कर सकते, इनका जवाब पत्थर से, ये बात तो हम नहीं कर सकते। एक एजुकेटेड, एक जिम्मेदार शहरी के नाते मैं समझता हूँ कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाना करना है और जो काम एपीसीआर का उनकी मदद करेंगे। देखिए, हम तो कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते, हम ये करेंगे कि उनकी मदद कर देंगे, उन्होंने लड़ने हमारे पास, बहुत अच्छी बात है। And as I moved from TOI to DC, I realized after some time that probably all the mainstream media had come down to that one level where the PNL counted more than what is the information that we are giving out. जब इसको रोकने की कोशिश करी तो राइट विंग के लोगों ने उनको गोली समारी और उसके बाद उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी फैमिली के साथ में संजय हेगड़े साहब लॉयर थे, तो उस फैमिली ने खुद से मीडिया को जाके स्टेटमेंट दिया कि इस ग्रुप के ऊपर आप दिल्ली रॉयट का एलिगेशन लगा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमको नहीं जानते थे और हमारे पास आके हमारे केसेस में हेल्प कर रहे हैं, तो हाउ कैन दे डू दिस। मीटिंग की इस तरह से बताइए क्या निर्णय लिया गया? ये मीटिंग ह्यूमन राइट ग्रुप्स की एक मीटिंग थी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर बुलाया था और देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जाए, लोगों को कैसे जस्टिस दिलाया जाए, लोगों को कैसे जस्टिस प्रिवेल किया जाए और जस्टिस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए और जो हेट क्राइम, नफरती हमले जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कैसे आपस में मिलजुल कर इसका सामना किया जाए, इसके लिए आज मीटिंग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। Hello everybody, I am Kaniza Garagi and I have around 24 years of experience in journalism. So I come from the ground level. That is, I used to go on the field in 1996 and cover the reports. What I would like to say is, when I worked in Mumbai, I covered the civil beat, that is, you have the GHMC here and there is a BMC there. And at that time, I was one of the Muslim reporters amongst all the reporters there. And I used to feel that there is a slight bias out there in Bombay because this is post the Babri Masjid demolition. But we were so used to it in Mumbai that we never realized that there was a discrimination. When I came to Hyderabad, that is in around 2003, and when I started going around, I was just amazed because nobody asked me, Kaniza to call. Are you a Muslim or a Parsi or what? That kind of question never came in Hyderabad. And that was something that really amazed me a lot. And I would go back home and I'd say, this is such a wonderful city. Nobody is bothered if I'm a Hindu or a Muslim or a Parsi. Everybody is so forthcoming and so open. And I think that was the culture which made me make Hyderabad my home. And I'm here since last 20 years. And what I would like to say is, yes, that what we are seeing now is probably one of the bitter phases which we are seeing happening in the country. There is a kind of, if you go to newsrooms, our newsrooms were not like, they versus us types. They were always very, each person was recognized for their work that they're doing. We never talked about ideology in newsrooms. We never talked about, if we do this story, do we have to take this narrative? It was never like that. But what definitely changed in the mainstream media is that, as I worked with Times of India, we realized that there was a kind of a diktat given to us. That suppose if this story is to be written, it is to be written only in this form. This is the way the story has to be presented. And there were particular stories which came from the management, not from the editor.
See, editorially, when we take a call that we are going to take this as an angle and report a story, becomes a completely different thing because that's an editorial call. We want to, we are looking at our competitors. But when it comes from the management, then the management talks about their plus and minuses, about their profit and losses. Trying to prejudge people. If we see somebody in an orange dress or something and we try and say, oh, is he somebody who's like that? Is he somebody whom we should be careful of? Why are we getting those kind of thoughts? Because when we are on the move, when we are on the ground, we are all there together. And I think it is that belief which will keep us strong. So, as far as the media is concerned, I am sure you all know that we have a second name called the Bodhi Media, and we ourselves, a lot of us have to carry that burden of it, and a lot of us have to justify for the acts of the who's who are doing. But what I strongly believe is that there are many handles, there are many people who go by facts. Don't trust one line of media. Always cross-check before you forward a news. Don't be like that auntie who's sitting at home who has no other job but to forward news or to forward WhatsApp messages. Please check, recheck, go back and tell your family also, because that is what is going to make us strong. Ensure that we believe, we don't get scared, we don't go by the tactics of the attention diversion gang, which is working full-time, overtime in the country, of which even the media is a part of. So with this, I would like to say thank you very much for giving me this opportunity, and I hope you have something to take back from me. Thank you. Thank you very much, Kaniza Garagi ma'am, for a very insightful speech. Now, I would like to request Mr. Nadeem Khan to come to the dais, please, and address the esteemed gathering. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So, डायस पे पढ़ा जर्नलिस्ट का बारी है मुझे लगता है. The professor is journalist and sister Aniza was speaking and Amir bhai is also a journalist. So law के प्रोग्राम में lawyers in a minority. Now it is my duty to batting with them. So the problem is that जो कनीजा ने जहाँ पे बात करी कि जर्नलिस्ट का काम रिपोर्ट करना है, नैरेटिव का ओपिनियन सेट करना नहीं है. तो मैं यहीं से अपनी बात, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसमें जिस आदमी का इस वक्त जो काम है, आई एम स्पीकिंग इन हिंदुस्तानी बिकॉज आई थिंक यू पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन आवर ऑन लैंग्वेज, जो इसमें हम अपने इमोशंस को कैरी कर सकें. तो हर आदमी वो काम कर रहा है जो उसके करने का काम नहीं, चेंज नहीं हुआ है. इस देश में लीगल सिस्टम में भी चेंज आया है, और वो ये चेंज कह रहा है कि जिस विजुअल आइडेंटिटी की बात कह रही थी कि बुर्का पहनने के बाद आइडेंटिटी बदलती है, तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से जुडिशरी भी बिहेव करेगी. और जब इसको रोकने की कोशिश करी तो राइट विंग के लोगों ने उनको गोली समारी, और उसके बाद उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी फैमिली के साथ में संजय हेगड़े साहब लॉयर थे. तो उस फैमिली ने खुद से मीडिया को जाके स्टेटमेंट दिया कि इस ग्रुप के ऊपर आप दिल्ली रॉयट का एलिगेशन लगा रहे हैं. ये वो लोग हैं जो हमको नहीं जानते थे और हमारे पास आके हमारे केसेस में हेल्प कर रहे हैं. तो हाउ कैन दे डू दिस? सुबोध सिंह की फैमिली पहली फैमिली थी जिन्होंने हमारे फेवर में स्टेटमेंट दिया था. आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा. तो बहरहाल इस प्रेजेंट मूवमेंट में 2.5 years बैक APCR पहले से एक सेटअप के तहत चल रहा था, लेकिन उसको मेरे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो शरायत के साथ मैंने उसको देखा. और फिलहाल जब हमने शुरू किया था तो 5-6 केसेस थे. इस वक्त हम 3 तरीके से लीगल एडवोकेसी का काम पूरे मुल्क में कर रहे हैं. पहला सिस्टम हमारा ये है कि हम पैरालीगल एक्टिविस्ट का टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं.
आपके यहाँ उनकी सेटअप्स इसलिए कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। कास्ट एट्रोसिटीज है और पुलिस एट्रोसिटीज। तो पहली हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हों जिसको उर्दू में पैरोकार कहा जाता है। कोर्ट में काम तो वकील करेगा लेकिन पैरोकार ये काम करे, तो पैरालीगल एक्टिविस्ट की ट्रेनिंग का काम। दूसरा, ट्रायल कोर्ट में जो वकील काम कर रहे हैं उनके साथ में एक इंटरैक्टिव सेशन बिल्डअप करना, हाई कोर्ट के लॉयर्स का, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का, या कहीं पे कम्युनल वायलेंस हो जाता है तो फिर सीनियर लॉयर्स या जजेस को ले जाकर उनके साथ में इंगेज करना, ये एक काम जो है हमारा है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन का काम है। आसाम से लेकर सीए के बाद से रिसेंट अभी हल्द्वानी की रिपोर्ट हमने 2 दिन पहले दिल्ली में रिलीज करी है। मैं, हर्षमंदर और अशोक जी और वजाहत साहब, हम सब हल्द्वानी गए थे और वहां से होकर आए थे, तो वहां की हमने रिपोर्ट रिलीज करी है। तीसरा हमारा काम है कि मैं रिपोर्ट भी रिलीज करूं। आप अपने से सोचिए कि मैं रिपोर्ट भी रिलीज कर रहा हूं, इतने बढ़िया सेमिनार भी हो रहे हैं, आप सब लोग सुन भी रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है। लेकिन मेरे पड़ोस का आदमी अगर जेल चला जाता है, उसको छुड़ाने के लिए अगर हम कोई नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेमिनार, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये लीगल एक्सरसाइजेस, ये वर्कशॉप सब बेकार है। तो थर्ड पार्ट हमारा ये है कि जिसके तहत हम उन लोगों के केस लड़ते हैं जो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते। डॉक्टर कफील हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे दोस्तों में से हैं ये। मुझे याद है कि डॉक्टर साहब को भी याद होगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला आदमी था जो जेल में इनके सगे भाई बहनों के बाद इनसे मिलने गया था, गोरखपुर जेल में। और उसके बाद हम लोगों ने एक कैंपेन बिल्ड किया था। इवन ही वॉज नॉट होपफुल इन जेल कि ये बाहर आ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1.5 महीने के अंदर ही बात बाहर आ गए थे। फिर अब आना जाना चल रहा है। सो इन लास्ट 2 years का थोड़ा सा एक लेखा, एक केस का रिकॉर्ड है। आप जिस टाइम चाहेंगे बाहर स्कैनर्स लगे हैं, आप उसको स्कैन करेंगे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 300 लोगों के एक्विटल यानी कि मुकदमे खत्म हुए और इस वक्त 1900 केसेस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। अभी तो मोटा मोटा मैं बता दिया। 16 स्टेट में हमारे ऑफिसर्स प्रॉपर टीम के साथ हैं। 300 शहरों पे हमारा लीगल सेटअप चल रहा है। नेक्स्ट ले लीजिए, बढ़ा तो जाइए, तेजी से बढ़िए। Thank you very much. I'd like now to invite Amar Ali Khan sir to kindly come on the dais and address the gathering. शुक्र है सुजैल नबी साहब मेरे पास तस्वीर करने के लिए, वरना मैं यहीं पे शुक्रिया अदा कर देता था APCR का और हम नदीम खान साहब का। ज्यादा नहीं बोलूंगा इसलिए कि बाकी कुछ नहीं रहा बोलने के लिए। आप जो होप की बात हो रही थी, उम्मीद की जो बात हो रही थी, उसी पे ये है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि 90% हिंदुस्तानी मासूम है और 10% जो है वो उनको भटका रहे। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि APCR का जो काम है, बोलने के लिए कुछ रह गया नहीं है, तो मैं ऐसे अपनी बात को यहीं पे ज्यादा लंबा तवील नहीं करूंगा। ये कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आपको हर मुमकिन मदद, बल्कि मैं जितने ऑडियंस है आप सबके तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए ये जरूर कहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जिस तरीके की भी मदद हो सकती है उसके लिए हम तैयार हैं। और ये रिवायत रही है कि हैदराबाद हर वक्त ऐसे चीजों में आगे रहा है। बोलने के लिए तो मैं कुछ सोचा था बोलूंगा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, तकरीर और जो वाकयात आप बयान किए हैं, उसके बाद सिर्फ मैं शुक्रिया का फर्ज अदा कर रहा था, लेकिन अब अयूबी साहब को
जहाँ पे आप अपनी बात रखिए, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करके यहाँ पे जब रुखसत लूँगा। शुक्रिया। Thank you very much, Ali Khan sir. Now I would like to request Advocate Fazil Ahmad Ayubi sir to come rise and address the gathering. मोहतरम बुजुर्गों, अली साथियों, ख़वातीन हज़रात, नदीम भाई ने जो हम लोग को सामने पेश की पूरी पिक्चर, और वो एक तरह से पूरे मुल्क का एक असेसमेंट ऐसा मुकम्मल है कि जिसकी तारीफ भी की जाए और जिसकी मदद भी की जाए और उसको दूसरों को बताया भी जाए कि इस तरह से काम लोग कर रहे हैं। जो उन्होंने बुनियादी बात कही होप की, उसी में मैं एक बात और जोड़ दूं कि आज भी इस मुल्क में जितना हिंदू मुसलमान के लिए करता है उतना मुसलमान मुसलमान के लिए नहीं करता। बाबरी मस्जिद के मुकदमे से लेकर के अभी ज्ञानवापी के मुकदमे तक हम लोग ये देखते चले आ रहे हैं, जो बहुत हॉटली कंटेस्टेड रिलीजियस इश्यूज के मुकदमे हैं, उसमें भी जो वकला, जो हिंदू वकला हैं, वो उतनी ही ईमानदारी, सिंसियरिटी से काम करते हैं जितने आप करेंगे या कोई करेंगे। बाबरी मस्जिद के मामले में तो राजीव धवन साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिमार्केबल है, वो सब जानते हैं, और उन्होंने पूरा शुरू से आखिर तक उसको कंटेस्ट किया। उसका नतीजा जो भी था वो अब रिकॉर्डेड है, लोग जानते हैं। ज्ञानवापी के मामले में कंटेस्ट किया था, लेकिन वो उनका कुछ साल, 1 साल 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, और उसके बाद से वो फिर दूसरे लोगों को उसको हैंडल करना पड़ा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग उसको कर रहे हैं। बुनियादी में 2 बातें बहुत अहम पेश करना चाहता था। बहुत कीमती लोग हैं इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी जहमत से यहाँ आए और यहाँ अपनी इतनी तवज्जो के साथ इसको सुन रहे हैं। And there is no need to lose hope. There is a constant thing. What we need to do is, these are standard, tried and tested fascist tactics, politics. They say that anti-corruption is one of the biggest things that all fascist parties do. All of them come democratically elected. Democratic principles are used to subvert democracy, undermine democracy, sabotage democracy. उसका मुकाबला करना है। अब उसका मुकाबला हम ये नहीं कर सकते वो इनका जवाब पत्थर से, ये बात तो हम नहीं कर सकते। एक एजुकेटेड, एक जिम्मेदार शहरी के नाते मैं समझता हूँ कि अदालत का दरवाज़ा कट कर देना है, और जो काम APCR कर रहा है उनकी मदद करेंगे। देखिए, हम तो कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते, हम ये करेंगे, उनकी मदद कर देंगे। उन्होंने लड़ने हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, उनकी हिम्मत अब नहीं करना। फिर वक्त यहाँ मैं सहाफ़ी के तौर पर बात करूँ, इसलिए कि सहाफ़ी के तौर पर जो आज़ादी है वो मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन के हिसाब से अगर बात करूँगा तो उसको रोक के सोच समझ के बात करना पड़ेगा। तो सहाफ़ी के एतबार से जो काम है उसको हमारे को काम करना है। चाहे अब मैं अगर नए MLC के तौर पर भी काम करूँगा तो मैं यही देखूँगा कि इंसानियत की बुनियाद पर जो काम होता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत हो रहा तो गलत हो। अब 30 साल ज़िंदगी के लगाने के बाद अगर मैं अपने आप को चेंज करूँगी तो नहीं हो सकता। तो जो सही है वो सही है, उसके ऊपर काम करेंगे। मीटिंग थी इस तारीख से बताइए क्या निर्णय लिया गया? ये मीटिंग ह्यूमन राइट ग्रुप्स की एक मीटिंग थी, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर बुलाया था, और देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जाए, लोगों को कैसे जस्टिस दिलाया जाए, लोगों को कैसे जस्टिस प्रिवेल किया जाए और जस्टिस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, और जो हेट क्राइम, नफरती हमले जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कैसे आपस में मिलजुल कर इसका सामना किया जाए, इसके लिए ही आज मीटिंग हुई थी। थैंक यू सर। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ एडिटर इन चीफ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।